الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ غنہ کا لغوی معنی، غنہ کا اصطلاحی معنی، وہ کون سے حروف ہیں جن حرفوں میں غنہ ہوتا ہے، غنہ کی اقسام، غنہ کی مقدار، اور پھر مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں غنہ کے لغوی معنی کی۔ تو غنہ کا لغوی معنی ہے بن بناہٹ یا گنگناہٹ، بن بنانا یا گنگنانا۔ تو یہ غنہ کا لغوی معنی ہو گیا۔ اور اگر اس کی اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاحی تجوید میں غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے، یا غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس تعریف کو یاد رکھنا ہے کہ وہ آواز جو ناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے، یا وہ آواز جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ تو جو آواز ناک کے بانسے سے یا ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے وہ آواز ہی غنہ کی آواز ہوتی ہے۔ تو لغوی معنی بھی بتا دیا بن بناہٹ یا گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی بھی وہ آواز جو ناک کے بانسے میں پائی جاتی ہے یا وہ آواز جو ناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ان حرفوں کی طرف جن حرفوں میں غنہ ہوتا ہے، اور وہ کتنے ہیں۔ تو وہ دو حروف ہیں جن حرفوں میں غنہ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا حرف ہے نون اور دوسرا حرف ہے میم۔ اب نون، چاہے یہ نون ساکن ہو یا چاہے نون تنوین ہو، یہ دونوں طرح کا نون ہے۔ تو یہ حروف غنہ کہلاتے ہیں، اور یہ دو حروف بھی ایسے حروف ہیں جن حرفوں میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور ہر حال میں غنہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں حرفوں میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب اس غنے کی مقدار کیا ہے یہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، وگرنہ ان دونوں حرفوں میں ہر صورت میں غنہ ہوتا ہے، یہ بات آپ نے کبھی نہیں بولنی۔ اب آتے ہیں غنہ کی اقسام کی طرف۔ تو غنہ کی دو قسمیں ہیں، غنہ اصلی اور غنہ فری۔ تو غنہ اصلی کو غنہ آنی اور غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں، اور غنہ فری اس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ غنہ اصلی اور غنہ فری کے نام ہو گئے۔ غنہ اصلی کو غنہ آنی اور غنہ ذاتی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو غنہ فری ہے اس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ غنہ ذاتی بولتے ہیں، تو غنہ ذاتی کا مطلب یہی ہے کہ وہ غنہ جو کہ غنہ اصلی ہے، اور اسی طرح غنہ آنی بھی اسی غنے کو کہا جاتا ہے جو کہ غنہ اصلی ہے۔ تو غنہ اصلی کے ہی یہ دو نام ہیں، غنہ آنی اور غنہ ذاتی۔ اور اسی طرح جو غنہ فری ہے اس کو غنہ زمانی بھی کہتے ہیں، اور غنہ فری اس کو آپ غنہ زمانی کہہ لیں یا غنہ فری کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، یہ دونوں نام ایک ہی کے ہیں۔ اب آتے ہیں غنہ اصلی کی طرف۔ غنہ اصلی نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس کے بغیر نون اور میم ادا ہی نہیں ہوتے، اس کے بغیر نون اور میم ادا ہی نہیں ہوتے، اور یہ غنہ بغیر کسر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غنہ آنی وہ غنہ ہے جس کے بغیر نون اور میم ادا ہی نہیں ہوتے، یہ نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسر کے کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں غنہ فری کی طرف۔ تو غنہ فری یہ غنہ کسر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو غنہ اصلی اور غنہ فری میں جو فرق ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ غنہ اصلی جو ہوتا ہے وہ بغیر کسر کے کیا جاتا ہے، اور غنہ فری جو ہوتا ہے وہ کسر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آگے ہم مثالوں سے سیکھیں گے۔ تو اس چیز کو آپ نے کبھی نہیں بولنا کہ غنہ اصلی جو ہوتا ہے وہ بغیر کسر کے کیا جاتا ہے، اور غنہ فری جو ہے وہ کسر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں غنہ کی مقدار کی طرف۔ تو غنہ آنی کی مقدار، یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ آگے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ غنہ آنی جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، یہ غنہ نون اور میم کو ادا کرتے وقت فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ اور غنہ زمانی کی مقدار کیا ہے، یہ غنہ ایک الف کی مقدار ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ ایک الف کی مقدار لمبا نہیں کیا جاتا، آپ نے جیسے ہی نون اور میم کو ادا کیا وہ فوراً ادا ہو جاتا ہے، اور جو غنہ فری ہے وہ ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب غنہ اصلی کب ہوگا اور غنہ فری کب ہوگا اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ غنہ اصلی کب ہوگا، غنہ فری کب ہوگا۔ غنہ اصلی یہ غنہ جب نون اور میم میں اظہار ہو رہا ہو تب ہوتا ہے،
या नून और मीम जब मुतहर्रक हों तो तब होता है। ये मिसालों से हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। गुन्ना फरी, ये गुन्ना नून और मीम बहालत इख्फा, नून और मीम में जब इख्फा हो रहा हो तब होता है, या नून और मीम जब मुशद्दद हो तो फिर उनमें होता है। कौन सा गुन्ना? गुन्ना फरी। तो अब इसको हम मिसालों से सीखते हैं। मिसालों से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको इसकी तारीफात भी आ जाएंगी और इनकी मकदार के बारे में पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये गुन्ना की कौन सी किस्म है। अब सबसे पहले बात करते हैं मुतहर्रिक की। तो ये देखें, यहाँ पर नून मुतहर्रिक है। क्या है? नून मुतहर्रिक है। यहाँ पर नून पर हरकत आ रही है। मुतहर्रिक उस हरफ को कहते हैं जिस हरफ पर हरकत हो, और हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। तो यहाँ पर नून के ऊपर हरकत आ गई जो कि ज़बर है। तो अब यहाँ पर नून जो मुतहर्रिक है, इस नून पर भी गुन्ना होगा, मगर इस गुन्ने की मिकदार क्या है? इस गुन्ने की मिकदार बहुत ही कम है। बहुत ही कम का मतलब ये है कि जैसे ही हम नून और मीम को अदा करेंगे वैसे ही ये गुन्ना अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि नून है तो नून के ऊपर हरकत आ गई। तो अब मैं नून को पढ़कर आपको बताता हूँ कि इसमें गुन्ना किस तरह हो रहा है। तो अब ये देखिए, नून के ऊपर जबर है तो नून जबर ना, ना। ये देखिए, जैसे ही नून को पढ़ा ना, ना, जैसे ही मैंने नून को पढ़ा तो ये नून फौरन अदा हो गया। इसमें जो गुन्ना था वो गुन्ना फौरन ही पढ़ा गया। तो अब यहाँ पर मैंने इसको कसदन लंबा नहीं किया। कसदन अगर लंबा करेंगे तो फिर ये गुन्ना जो होगा वो गुन्ना असली नहीं होगा, बल्कि गुन्ना फरी हो जाएगा। तो गुन्ना असली क्या होता है कि जैसे ही आप नून और मीम को अदा करेंगे फौरन अदा हो जाएगा। तो यहाँ पर नून के ऊपर हरकत है तो ये गुन्ना जो है ये गुन्ना क्या होगा? ये गुन्ना असली है। तो जैसे ही नून के ऊपर हम जबर को पढ़ेंगे ना, 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 ये देखिए आवाज को नाक में रोक कर मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि फौरन ही मैंने आवाज को छोड़ दिया। ना, ना। अगर मैं आवाज को नाक में थोड़ा सा रोक कर छोड़ू ना, देखिए ना, तो ये गुन्ना असली नहीं रहा, बल्कि ये गुन्ना फरी बन जाएगा। क्योंकि गुन्ना फरी में ये होता है कि आवाज को थोड़ा सा लंबा किया जाता है, नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करके छोड़ा जाता है। तो अब आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ी देर के लिए रोकर छोड़ेंगे तो फिर ये गुन्ना असली नहीं बल्कि गुन्ना फरी बन जाएगा। तो गुन्ना असली और गुन्ना फरी में यही फर्क है कि गुन्ना असली में अब नून और मीम को जैसे ही हम अदा करेंगे, इसमें जो गुन्ना है वो गुन्ना फौरन अदा हो जाएगा। जैसे ना, 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 ठीक हो गया ना, 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 आवाज को नाक में ले जाकर फौरन छोड़ दिया ना। अब इसमें ये क्या है? ये कसदन नहीं हो रहा, ये बिला कसद हो रहा है, बगैर इरादे के हो रहा है। आप अगर इस आवाज को नाक में ना भी ले जाना चाहें तो फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। आवाज नाक में हर सूरत में जाएगी ना। क्यों? इसलिए कि ये नून और मीम की सिफ्त है कि इसमें सिफ्त गुन्ना है। जैसे ही नून और मीम को हम पढ़ेंगे आवाज नाक में लाजमी जाएगी। तो ये गुन्ना असली की पहचान है कि अगर ये मुतहर्रक होगा तो फिर गुन्ना असली होगा। तो यहाँ पर नून मुतहर्रक है तो इसलिए यहाँ पर नून पर जो गुन्ना है करेंगे वो गुन्ना क्या होगा? वो गुन्ना असली होगा। इसी तरह मीम के ऊपर जबर आ गई तो जब मीम को पढ़ेंगे म, 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 तो ये देखे म, आवाज नाक में गई और फौरन ही आवाज को छोड़ दिया म। अगर नाक में आवाज को ले जाकर थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, आवाज को थोड़ा सा रोके, थोड़ा सा लंबा करें, तो फिर ये गुन्ना असली नहीं रहेगा, बल्कि ये गुन्ना फरी बन जाएगा। तो नून और मीम जब भी मुतहर्रक होंगे इनमें गुन्ना होगा, और उस गुन्ने की मिकदार क्या है? जैसे ही मीम और नून को पढ़ेंगे ये फौरन अदा हो जाएगा। यानी कि आवाज को नाक में ले जाकर हमने लंबा नहीं करना, बल्कि आवाज को फौरन छोड़ देना है। जैसे नस्तईन, जिस तरह हमने जबर के साथ पढ़ा नस्तईन, नस्तईन, इसी तरह मीम पर जब जबर आ जाएगी तो उसको पढ़ेंगे मालिकी, मालिकी, मालिकी। बात समझ में यकीनन आपको आगे होगी कि नून और मीम जब मुतहर्रक होंगे तो फिर इनमें जो गुन्ना होगा वो गुन्ना क्या होगा? वो गुन्ना असली होगा। और उसकी मिकदार क्या है कि उसको हमने ज्यादा लंबा नहीं करना, मीम और नून को फौरन ही पढ़कर छोड़ देना है। इनकी आवाज को नाक में ले जाकर रोकना नहीं और एक अलिफ के बराबर उसको लंबा नहीं करना। अब हम आते हैं इजहार की तरफ। तो इजहार के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपने इजहार की वीडियो देखी होगी तो इजहार के कायदे में यकीनन आपको पता होगा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्के में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा। और इजहार में क्या होता है कि नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ा जाता है। आवाज नाक में तो जाती है मगर आवाज को नाक में ले जाकर रोकना नहीं, लंबा नहीं करना, बल्कि फौरन छोड़ देना है। तो ये देखें जिस तरह के ये आ रहा है, ये देखें इस मिसाल में मन आमना, यहाँ पर नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है मन आमना। तो यहाँ पर नून को पढ़ते हुए हमने आवाज को नाक में ले जाना तो है, आवाज नाक में जाएगी तो जरूर, क्योंकि ये नून की सिफ्त है कि इसमें सिफ्त गुन्ना है। आवाज को नाक में तो ले जाना है मगर आवाज को नाक में ले जाकर रोकना नहीं, बल्कि फौरन छोड़ देना है। तो इसको कैसे पढ़ना है?
मन आमना, मन आमना, आवाज नाक में गई, मन आमना, आवाज को नाक में लेकर जाकर फौरन छोड़ दिया, मन आमना। तो ये क्या हो गया, ये इजहार हो गया। अब नून में जो गुन्ना पाया जा रहा है वो क्या है, ये गुन्ना क्या है, ये गुन्ना असली है। गुन्ना असली में क्या होता है, आवाज को नाक में ले जाकर फौरन छोड़ दिया जाता है। और गुन्ना फरी में क्या होता है, आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा किया जाता है, ये कसदन किया जाता है। तो इजहार में जो आवाज को नाक में ले जाना है, ये कसदन हमने लंबा नहीं करना होता, यहाँ पर आवाज को नाक में ले जाकर फौरन छोड़ देना होता है। तो मन आमना ये इजहार हो गया। इसी तरह आगे दूसरी मिसाल आ गई, अनअमता। तो यहाँ पर मीम साकन के बाद ता आ गई, तो ये मीम की मिसाल है। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है, अनअमता, 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 ऐसे नहीं पढ़ना। कसदर, कसदर मीम को लंबा नहीं करना, कसदर आवाज को नाक में ले जाकर लंबा नहीं करना है, फौरन आवाज को छोड़ देना है। अनअमता, 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 ठीक हो गया, ये इजहार का हो गया। आगे आ गया इख्फा। तो इख्फा की वीडियो मैंने बनाई है। तो इख्फा का यही कहना था कि वहां पर नून की आवाज को नाक में छुपाया जाता है और थोड़ा सा लंबा किया जाता है। तो यहाँ पर ये गुन्ना होगा, ये गुन्ना क्या होगा, ये गुन्ना फरी होगा। क्यों, इसलिए कि गुन्ना फरी की एक तो मिकदार ये है कि उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, और दूसरा क्या है कि इसमें कसदन आवाज को लंबा किया जाता है। तो ये देखें इख्फा में हमने किस तरह करना है इख्फा, ये देखें ये आ गया, अनफुसुकुम, कैसे पढ़ेंगे इस अनफुसुकुम, नून साकन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ गया, तो आवाज को नाक में ले जाकर कसदन लंबा करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, अनफुसुकुम, अनफुसुकुम। इसी तरह आगे ये आ गया, अलैकुम बेवकील। यहाँ पर जो है मीम साकन के बाद भा आ गया। तो मीम की कवायद क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आगे वीडियो आएगी। तो यहाँ का पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इख्फा हो रहा है। तो यहाँ पर भी आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। कैसे पढ़ना है इसको, अलैकुम बेवकील, अलैकुम बेवकील। यहाँ पर नून पर शद आ रही है, यहाँ पर मीम पर शद आ रही है। छोटा सा जो डब्ल्यू होता है जिसको शद कहा जाता है, और जिस हरफ पर शद होती है उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है। तो जो मुशद्दद हरफ होता है, यानी कि जिस हरफ पर शद होती है, उस हरफ को क्या करते हैं, उसको गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। उस हरफ में हमेशा गुन्ना होता है, यानी कि नून और मीम में, हर हरफ में नहीं। जहां पर भी नून और मीम मुशद्दद होंगे वहां पर इनमें गुन्ना होगा। और ये गुन्ना कौन सा होगा, ये गुन्ना फरी होगा। और इसकी मिकदार क्या है कि इसको एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है, और दूसरा क्या है कि इसको कसदन लंबा करना है। इसको क्या करना है, कसदन लंबा करना है, और एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा किया जाता है। गुन्ना फरी की यही तरीफ है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इन्नमा, इन्नमा, नून में शदर आ गया, आवाज को नाक में ले जाकर एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे और कसदन लंबा करेंगे, इन्नमा, 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 ठीक हो गया। और दूसरा ये आ गया अम्मा, यहाँ पर क्या हुआ, अम्मा, अम्मा, मीम शदद आ गया, आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा किया फिर छोड़ दिया, अम्मा, अम्मा, अम्मा। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने गुन्ना के बारे में सीखा, गुन्ना का लुग़वी माना, गुन्ना का इस्तिलाही माना, वो कौन से हरूफ हैं जिन हरफों में गुन्ना होता है, गुन्ने की कितनी अक़साम है, और गुन्ने की मिकदार क्या है, और फिर मिसालों से हमने इन तमाम चीज़ों को सीखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये सदका जारिया बने। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।